व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अभिषेक बनर्जी की दो टूक आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तानी सेना के टॉप अफसर। 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, बोले सीएम विष्णुदेव साय। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अलर्ट। तो खबरें विस्तार से। अभिषेक बनर्जी की दो टूक आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तानी सेना के टॉप अफसर। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सिंगापुर में ऑल पार्टी डेलीगेशन में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके पास सार्वजनिक डोमेन में बहुत सारे सबूत हैं जहां आप बड़े पाकिस्तानी सैन्य जनरल अधिकारियों को लेबल किए गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते देखते हैं। उन्होंने कहा है कि आप इसे और कहां देखते हैं। मेरा मतलब है हम आपको सबूत के तौर पर और क्या दे सकते हैं। आपको इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे फ्लैग करें। मेरा मानना है कि आज के समय में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाता है और ट्विटर थ्रेड राजनयिक केबलों में से तेजी से फैलते हैं। हमें भी अपनी स्थिति बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजनीति को करीब से नहीं देखते, सोचते हैं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की संप्रभुता की बात आती है तो विपक्ष का क्या रुख होगा। Lot of people, especially the people who doesn't follow politics closely, thinks that what will be the opposition stand when it comes to national security or sovereignty of the country. Well, I might differ with the ruling dispensation or the political party. I will continue to fight with them tooth and nail, will not budge an inch from my fight. But when it comes to the national security of my country, I will stand firmly and serve towards what is in the best interest of my nation. I will not let my political petty interests come in the way of my national interest of my nation. And that is why we are all here for. We have been meeting dignitaries, strategic thinkers, luminaries, high-ranking government officials, think tanks, and conveying this message of countering terrorism and putting an end to this menace for once and all. All of us have been wondering that how do we put an end to this? The lady sitting at the second table asked the right question by saying that this has been continuing for so long. It's a 5-decade conflict. How do we put an end to this? Well, all of us need to do our bit. We have been doing our bit by visiting several countries, attending programs that all of us are meant to do. All of you need to do your bit as well. I agree with the fact that the global narrative has been captured in a different way, and I couldn't agree with this gentleman more. Well, I'll definitely try and convey this message to the ruling dispensation, but the only way to do that is when the parliament is in session. Otherwise, I'll convey that the members of the ruling dispensation are here, and I'm sure that they will convey it to their political colleagues or the ones at the hem of the government as well. So I agree with him. But we also need to realize that, we need to raise this in our circles as well, in universities, in boardrooms, in classrooms, in interacting with friends, wherever we go, in civic society, wherever we go, we need to do our bit. You have so many evidence out in the public domain where you see high-ranking military park officials, and there are not one or two, there are many in numbers. You have high-ranking Pakistani military generals, officials, attending funeral meets of labeled terrorists. Where else do you see this? I mean, what else can we offer you as evidence? You need to raise this, you need to further amplify this, flag this in your social media handles. I'm sorry, but we have an ex-diplomat with us. But, I believe that in today's time, social media plays a pivotal role, and Twitter threads travel faster than diplomatic cables. So we need to up our ante as well. बढ़ते अगली खबर की ओर।
2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, बोले सीएम विष्णुदेव साय। सीएम श्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले वासियों को 330 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 24 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 220 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से 17 लोकार्पण कार्य एवं 110 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 7 कार्यों का भूमि पूजन शामिल। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह विकास कार्य न सिर्फ जिले के विकास को एक नई पहचान देंगे, बल्कि एक समृद्ध और विकसित रायगढ़ निर्माण के हमारे संकल्प का प्रतीक बनेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करें और सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को निरंतर विस्तार दें। जिन कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है उनमें प्रमुख रूप से 219 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का लोकार्पण, 97.52 करोड़ रुपए की लागत से रायगढ़ में बनने जा रहे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन तथा रायगढ़ में बने नए परिवहन कार्यालय भवन को लोकार्पण शामिल है। वहीं रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलवाद विकास में बड़ी बाधा है। केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमें काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए, 15 वर्षों में तो नक्सलवाद के साथ जब बीजेपी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय भी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी गई थी और हम लोग अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे थे। फिर सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने के बाद जो 5 साल रही, हालांकि उनका सारा लीडरशिप नक्सलवाद के कारण एक बार का समाप्त हो गया। उसके बाद भी उन्होंने नक्सलवाद के साथ मतलब लड़ाई लड़ने में रुचि नहीं दिखाई, जबकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि झीरम घाटी का सबूत हम जेब में लेके घूमते हैं। लेकिन 5 साल उसको खुद भी मतलब चीफ मिनिस्टर रहे तो ना उनका वो सबूत निकला उनके जेब से, ना लोग भी कोई उसमें कर पाए। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने फिर जनादेश देकर हम लोग को सरकार में बैठाई तो बड़ा एक विश्वास जनता का हम लोग को प्राप्त हुआ, बड़ा जनादेश मिला। तो विकास के लिए एक बाधक है नक्सलवाद, तो इसको हटाना जरूरी था। और क्योंकि केंद्र में भी हम लोग की सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को फायदा मिल रहा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इस देश से मतलब समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हम समझते हैं 1.5 वर्षों में माननीय गृह मंत्री जी का अनेकों बार छत्तीसगढ़ में आना हुआ, बैठक लिए, कैंप में स्वयं गए, हमारे जवानों के साथ मिल बैठकर बात करके उनके साथ भोजन किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अलर्ट। देश में इस बार मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह 106% रह सकती है। पिछले महीने से 105% बताया गया था। वहीं जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो 108% हो सकती है। यानी इस दौरान 87 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसे लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA कहा जाता है। देश में इस बार मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह 106% रह सकती है। पिछले महीने से 105% बताया गया था। वहीं जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो 108% हो सकती है। यानी इस दौरान 87 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसे लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA कहा जाता है। देश में इस बार मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के क्रांतिकारी और कवि विनायक दामोदर सावरकर की 142वीं जयंती पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर जी
को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण भाव को डिगा नहीं पाए। उन्होंने कहा है कि आजादी के आंदोलन में उनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। देश के लिए उनका त्याग और समर्पण विकसित भारत के निर्माण में भी पथ प्रदर्शक बना रहेगा। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप और तत्व, सावरकर माने तर्क और तारुण्य, सावरकर माने तीर और तलवार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही उपासक थे। संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने कहा कि सेलुलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि वीर सावरकर के लिए जितनी भी बातें पढ़ी और सुनी है, एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया रवाना। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों को उजागर करने के लिए भारतीय सांसदों का पहला प्रतिनिधिमंडल जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में बुधवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का पहला समूह ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक संपर्क के हिस्से के रूप में 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा और सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प की पुष्टि करेगा। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, माकपा सांसद जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद अपराजिता, हेमांग जोशी, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और राजदूत मोहन कुमार शामिल। बढ़ते अगली खबर की ओर। शशि थरूर ने की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात तो कांग्रेस नेता का बयान। कांग्रेस नेता उदित राज ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी नेता नहीं कह रहे हैं, यानी पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे, वह शशि थरूर कर रहे हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पहले की सरकारें क्या करती थी? उन्होंने कहा है कि ये भारतीय सशस्त्र बलों का श्रेय ले रहे हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं चलता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि कुछ करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे, शेखी बघारेंगे, सेना की कार्रवाई का लाभ लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया और सेना की कार्रवाई को पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये सेना का सारा श्रेय खुद ही ले रहे हैं। इसमें सेना का कोई सम्मान नहीं है। ये तो शशि थरूर का पब्लिसिटी स्टंट है। ये भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रवक्ता बन गए। पनामा में एक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए थरूर ने भारतीय क्षेत्र को निशाना बनाकर जारी आतंकवादी कृत्यों के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को अब पता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India
breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. That was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both. बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम में टूरिस्टों से लौटने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद पर्यटकों से जम्मू कश्मीर में लौटने की भावुक अपील की। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म पर निर्भर रहने वाले निवासियों की आजीविका पर इन घटनाओं के प्रभाव को बताया। उन्होंने कहा कि इस साल हमने लाखों लोगों के आने की उम्मीद की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्होंने मासूम लोगों की हत्या की उन्होंने नहीं देखा कि उन टैक्सी ड्राइवरों, होटलों मालिक और पोनी मालिकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्र की टूरिज्म पर निर्भरता पर जोर देते हुए कहा, हम भगवान द्वारा दी गई सुंदरता बेचते हैं और आजीविका कमाते, जो हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है। कृपया वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने आगामी अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया, जो हर साल हजारों भक्तों को भगवान शिव के दर्शन के लिए घाटी में खींच लाती है। उन्होंने कहा, आप लोग जरूर यहाँ आए क्योंकि भोलेनाथ भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने बयान में अब्दुल्ला ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जारी लड़ाई को दुनिया के सामने रखने के लिए भेजे गए ऑल पार्टी डेलीगेशन पर भी अपनी टिप्पणी की। और अनफॉर्चुनेटली पूछना पड़ता है, जो 1 महीना पहले यहाँ इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जख्म का इलाज जो वक्त होता है, ग्रेजुअली हम देख रहे हैं टूरिस्ट शायद आ रहे हैं। और ओवरऑल आपका नजरिया इस वक्त क्या है, क्योंकि यात्रा भी शुरू होने है? मेरे 2 नजरियात हैं। एक ये कि टूरिज्म ही हमें नहीं रखना चाहिए। इस रियासत को आगे अगर चलना है तो हमें उस इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज्म में एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे, ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा कारगिल का जब हुआ, कारगिल में कितनी दूरी है, मगर भाग गए लोग। मेरी हुकूमत थी, डर गए। इसे जहां तक आज है, आज सबसे ज्यादा जरूरी है इन लोगों ने जिन्होंने अपने गिरवी रख के, जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया। पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कि अपने पांव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज है वो टूरिज्म ने हमें दिया था। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की। मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया, उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा, जिनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इससे बहुत जरूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए, कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं।
जो प्रधानमंत्री ने वो डेलीगेशंस भेजे हैं, अल्लाह करे कि वो ये मैसेज भी ले जाए कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लड़ाई के हकदार हम नहीं हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, मगर अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, बेगुनाह को मारना बंद करो। लेकिन दोनों मुल्क जो है पानी बढ़ते अगली खबर की ओर। आवारा कुत्तों के लिए स्थायी व्यवस्था करे दिल्ली सरकार। दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या आए दिन आम लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं, जो कि बेहद अहम है। जस्टिस मिनी पुष्करना की पीठ ने इस मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यह आवारा कुत्तों के पुनर्वास का स्थायी समाधान करे। इसके लिए कोर्ट ने सरकार से प्रभावी नीति बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के पास भेजते हुए कहा है कि यह मुद्दा केवल नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अहम सामाजिक और प्रशासनिक मसला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की कार्रवाई तभी प्रभावी हो सकती है जब इससे जुड़े सभी लोगों की भागीदारी के साथ दीर्घकालिक नीतियां तैयार की जाए। यह निर्देश उस याचिका के संदर्भ में दिया गया है जिसमें न्यायालय डॉग अम्मा के नाम से मशहूर प्रतिमा देवी की याचिका पर विचार कर रहा था। 21 मई को पारित आदेश में न्यायमूर्ति पुष्करना ने कहा कि ऐसी कई याचिकाएं हैं जिनमें आवारा कुत्तों को काटने के मामले हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि जानवरों को पकड़कर कहीं छोड़ देने से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए योजना बनाकर काम करना होगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।